Okay, so in HTML, first I will discuss some basics. क्या है HTML है क्या? मैम started this chapter, तो मैम ने introduction दे ही दी होगी. HTML is a only language for creating web pages. I will use the word only because if you want to create any web page, so we have only one choice, that is HTML. Now, आपके अगर in your family there are some there are your brother or sister जो अभी हाई स्टडी में उन्होंने HTML की होगी या और भी लैंग्वेजेस की होगी, तो उन्होंने आपको ये कहेंगे और भी देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन व्हिच वी कैन क्रिएट वेब पेजेस, बट देयर आर ASP, PHP और भी कई ऐसी लैंग्वेजेस है जिसमें वेब पेजेस क्रिएट हो सकते हैं. पर स्टूडेंट विद कैप, योर क्लास इज दिस साइड, तो आपके पास जब भी आपने कोई एडवांस लैंग्वेज यूज करनी है, पर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज HTML. आपको अगर सपोज मैंने यूज करनी है PHP लैंग्वेज, तो आई विल हैव टू यूज स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में मुझे सारी कोडिंग यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, इसका मतलब बाकी टैग जो HTML टैग, हेड टैग, वो सारे सेम रहेंगे. इसका मतलब ये हुआ विदाउट HTML योर वेब डिजाइनिंग इज टोटली not possible, you can say. Clear? Now, in a place where we type the coding is called, yes, any student. Here I am typing the code in Notepad. What is Notepad? It is a text editor. आपके पास अगर आपने किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग करनी है तो यू नीड वन एडिटर. फॉर एग्जांपल, if you want to do the edit, you want to create a Visual Basic program, so you need Visual Basic editor. For example, I'm using Python editor. इसमें Python के प्रोग्राम्स बनते हैं, ये देखिए बेटा. तो किसी भी लैंग्वेज में, whether it is a Python language, whether it is a HTML, whether it is a any Java language or a Visual Basic language, every language need one browser, one editor. So question is, dash is a editor where we can type the coding. Dash is a place where we type the coding. Editor. तो editor text editor भी होती हैं और graphical editor भी होते हैं. Graphical editor means no need to type the coding. हमें इमेज इंसर्ट करनी है या कुछ भी करना है, हमें कोडिंग टाइप करने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जांपल फ्रंट पेज, मैं आपको यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक एडिटर है दैट इज कॉल्ड फ्रंट पेज. नो नीड टू टाइप द कोडिंग. जैसे जस्ट लाइक इन MS वर्ड में आप टेबल इंसर्ट करते हो, पिक्चर इंसर्ट करते हो, यूज जस्ट लाइक MS वर्ड. टाइप योर कोडिंग विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड. इसे कहते हैं टेक्स्ट. ये वो नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर where you will have to type the coding, but front page, Dreamweaver, these are which one? GUI, graphical user interface. Clear? Now I open Notepad. HTML has a unique structure. HTML commands are called, yes, anybody? Our HTML commands are called tags. These are called tags, and tags are always enclosed within angular bracket. Clear? It means whenever there is an angular bracket, the HTML will consider this is a tag. इसको as it is display नहीं करना, इसको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, कुछ उसके ऊपर अप्लाई करना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, यू हियर यूज V टैग, ये टेक्स्ट को बोल्ड करेगा. इट मींस ये V एज इट इज स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होगा. इट अप्लाई सम एक्शन. क्लियर? एंड we start with there are some basic there are structural tag.
ये स्ट्रक्चर का पार्ट है HTML. One more thing, tell me, HTML is a case sensitive language or not? It is not a case sensitive language. You can type in small letter, we can type in capital letter, we can use mixture. For example, ये देखिए इधर HTML. But as a computer student, you should type in small letters. Now tell me why this? Reason is, in the future, whenever you will learn the programming language, these languages are in small case. So if you have a habit to type in small letters, that will be more helpful in future. Okay, small type है, so small letters. Clear? Capital letters में कई बार ऐसी mistakes हो जाती हैं जो आपको clear नहीं होती, but in a small case आपके पास errors पता लग जाती हैं. ठीक है, तो small case में coding type करनी चाहिए. It is recommended, not a compulsory. Start with HTML, close with the HTML. Okay, student, tell me a tag that has a starting and closing is called container tag. ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग भी होती है उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं. एंड ए टैग दैट हैज ओनली वन स्टार्टिंग नॉट एंडिंग. ठीक है. HTML has two sections, head and body. So head tag and head tag close and body tag start and body tag close. Okay, students. Yes, the offline students, if you have any problem, raise your hand. Otherwise, no talking with them. Now tell me, what is the usage of head tag? Yes, sir. So why we use header section? Yes, anybody, any other student? What is the usage of head section? So I'm not discussing. Yes, sir. So partially this is correct, but not a complete. Yes, sir. Partially you are correct. Yes. I'm giving the answer. The things which are visible in browser are declared inside body tag. For example, you declare one heading, one image, one table. ये सारा कहाँ पे डिफाइन होता है? बॉडी टैग. पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होती. कभी आपने सोचा कि आपका जब आप कोई गूगल में सर्च करते हो स्वामी संध्या पब्लिक स्कूल, तो स्वामी संध्या पब्लिक स्कूल की वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर आती. क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ सर्चिंग कीवर्ड्स हैं. ठीक है, कुछ सर्चिंग कीवर्ड्स हैं. ये सारे के सारे सर्चिंग कीवर्ड्स कहाँ पे डिफाइन होते हैं? अंडर हेड टैग. वहां पे एक मेटा टैग होता है. ठीक है, वहां पे कहाँ क्या वर्ड होते हैं? वहां पे सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जलंधर, मैं अगर यहाँ पे जलंधर दे दूं और मेरी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाए, तो अगर कोई जलंधर सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट भी आ जाएगी उसमें. मैं वहां पे टाइप कर दूं एजुकेशन, तो कोई अगर एजुकेशन के ऊपर सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट भी आ जाएगी. तो मेटा टैग है यहाँ पे. या फिर स्क्रिप्ट टैग है, मैंने अभी डिस्कस किया था स्क्रिप्ट टैग. ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे डिफाइन करते हैं. एक CSS फाइल है, फ्यूचर में आप देखोगे व्हेन यू विल बी इन क्लास 10, तो यहाँ पे CSS होती है. तो अगर हमने अपनी प्रोग्राम HTML में डिजाइनिंग करनी है, तो ये अच्छी सी फॉर्मेटिंग करनी है, तो CSS फाइल्स होती हैं. कौन सी फाइल है बेटा? CSS. तो ये सारी की सारी CSS फाइल्स एंड अदर थिंग्स आर डिफाइंड अंडर हेड टैग. All the background activities
these are not visible on the screen, are defined under head tag. तो हेड टैग के अंदर ही आपके पास वो चीजें जो आपके स्क्रीन के आगे विजिबल नहीं है, बैक में वर्क कर रही हैं, आपके सर्चिंग कीवर्ड्स, आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारे के सारे किस टैग में डिफाइन करते हैं? हेड टैग। तो हेड टैग में मैम ने बताया होगा टाइटल टैग, but there are so many other tags which we can use inside head tag. Yes, sir. देखो बेटा, sit down. HTML आपने लोअर क्लास विजुअल बेसिक की हुई है या बेसिक लैंग्वेज? क्यों बेसिक की हुई ना? क्यों बेसिक में अगर कोई सिंटेक्स में व्हाट हैपेंड बेटा? यस, एरर आएगी, एरर आएगी। HTML में कोई भी ऐसी एरर नहीं आती क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं है, इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये वेब पेजेस के लिए। तो अगर आप इफ यू इग्नोर टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, सारे इग्नोर कर दो, वहां पे सिंपल H1 लिख दो और उसमें टेक्स्ट टाइप कर दो, तब भी अब योर वेब पेज विल वर्क बिकॉज HTML never give any error. It understand कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है? आप इसमें से सारे टैग इग्नोर भी कर दोगे, इवन देन इट विल वर्क। आप क्या करो, ये सारा को डिलीट कर दो, स्वामी संदा टाइप कर दो, स्वामी संदा पब्लिक स्कूल, और सेव एज HTML कर दो। ब्राउजर में देखोगे स्वामी संदा पब्लिक स्कूल लिखा होगा। क्लियर? तो रीजन इज it will never show you the errors, but with the program जो आपको it understand, it will guess what कि ये ऐसा है, तो उस तरीके से वो आपको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर हो गया बेटा जी? नाउ नेक्स्ट इज under head tag we declare title tag, and in title tag the text that is visible in title bar, ठीक है? यहाँ पे तो सपोज मैंने टाइप कर दिया here title web page, first page, and I close title tag. Clear? And inside the body tag I declare my first web page. अब हमने इसको सेव कैसे करना है, ठीक है? You will have to click on file, click on save, select the location where, select the folder where you want to save your file. Suppose I am saving in desktop. Give the name of the file. Suppose my file is new 123 .htm or .html. Clear? और सेव एज, बेटा यहाँ पे आप गलती करते हो, सेव एज ऑल फाइल्स, अदरवाइज ये कौन सी फाइल बन जाएगी? टेक्स्ट फाइल। सेव एज ऑल फाइल्स, सेव योर फाइल, minimize your coding window and open your file in the browser. ये देखो बेटा, this is my content, ये मैंने कहाँ पे लिखा था? बॉडी टैग में, और my title is clear. Now inside your body tag I declare here peachy color equal to yellow. Now tell me any word that we use inside the opening tag is called, यहाँ पे बीजी कलर क्या है? Yes, these are attributes. So what is attribute? Additional information about a tag is called attribute. किसी भी टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? टैग्स. Is it clear? So if I want to change the background color, so I will take peachy color, yellow. I am saving this, and in browser I refresh the page. I'm checking बेटा यहाँ error है अभी.
ऑफ, मैंने दूसरे वेब पेज में चेंज कर दिया, बीजी कलर इक्वल टू, बेटा इन कलर बीजी एंड कलर नो स्पेस एंड स्पेलिंग ऑफ कलर इज COLOR, नॉट ए यू, बीच में नहीं लेना, दैट इज इनकरेक्ट। हाँ ये देखो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन फॉर यू, हियर body is a tag, PG color is a attribute, and yellow is a value, value to a attribute. Concept is clear? अब एक आपसे क्वेश्चन होता, you know the basic colors, but you will do red, green, आप ऐसे दे दोगे, but if I need, in the case of yellow, there are different shades of yellow color, how I can define? ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम आई कि वी नीड कलर कोड, तो कलर कोड ऑलवेज स्टार्ट विद यस विच सिंबल हैश। अब आपने कलर कोड लेके कैसे आना है, ये देखो देखो, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। अब यस, ये देखो बेटा, दिस इज फोटोशॉप, इसकी बॉटम में ब्लैक कलर और व्हाइट कलर के बॉक्स बने हुए हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर के बॉक्स के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे कलर पिकर डायलॉग बॉक्स इज देयर, इसमें से मैंने येलो कलर में क्लिक किया, फिर येलो कलर का एक शेड सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ एक कोड आ रहा है, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कोडिंग में गया, here in place of yellow I paste the code, before that I use hash, ठीक है, I save this, I open the browser, I refresh this, थोड़ा सा फर्क है, अभी आपको और मैं चेंज करके दिखाता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्क पड़ा आपको? there are you can say millions color combinations, देखिए उधर नेक्स्ट देखते हैं, कोई और अच्छा सा कॉम्बिनेशन लेते हैं। Nice. अब ये now tell me, in this color code we have total 6 values, ठीक है, तो आई थिंक मैम ने बीजी कलर डिस्कस कर दिया एंड कलर कोड, तो ये बेटा ये there are total 6 digits, first 2 digit for we know that there are 3 colors RGB, सुना होगा आपने, ठीक है, these are your light colors, तो जितनी भी लाइट के कलर होते हैं ये 3 कलर से मिलकर ही बने हुए हैं, ठीक है, रेड ग्रीन एंड, ठीक है, RGB, फर्स्ट 2 हमारे पास R के लिए, नेक्स्ट 2 फॉर G एंड नेक्स्ट 2 फॉर B, इसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे तो कलर शेड डिफरेंट हो जाएगा, तो वी आर जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ RGB, ठीक है, तो डोंट थिंक अबाउट दिस, तो आप नोट बैंड में डिफरेंट शेड्स कॉम्बिनेशन देखो, ब्लू के कितने शेड्स हैं, ठीक है, आप डिफरेंट कलर शेड्स ले सकते हो। नेक्स्ट इज
Okay, students, next important attribute is if you want to set an image as a background. Okay, so image insert करने के लिए BG color is used to set any solid color as a background. Clear? But if you want to set any image as a background, you need yes sir, background attribute. But for this, you must know what are the different type of your picture file format. JPG, PNG, TIFF, ठीक है, then GIF, BMP, ये सारी की सारी फाइल्स कौन सी हैं? These files are your image files. So image file, you can't set any video file as a background. ठीक है? And if you want to search any picture from your computer system, तो आपने ऐसे करना है सर्च बॉक्स में बेटा, सर्च बॉक्स में यूज स्टार सिंबल या एस्टेरिस्क कहते हैं डॉट जेपीजी, तो ये क्या सर्च करेगा पूरे कंप्यूटर में जेपीजी फाइल. इफ आई एम यूजिंग योर जिप, इट विल सर्च ऑल द जिप फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम. तो यहाँ में मैं इमेज लगा रहा हूँ, तो इसका सिंटेक्स क्या है बेटा, देखिए इधर. Yes, students, I'm increasing the font size. ये देखिए बेटा, in place of BG color, I am taking here background equal to double quotes start, double quotes close. Inside this, you will have to give the file name. क्या आपने देना है? File name with extension. For example, my file is abc.jpg. पर प्रॉब्लम यहाँ पे एक आएगी, आपका वेब पेज डेस्कटॉप में सेव है, बट योर इमेज इज इन डिफरेंट फोल्डर. उस केस में उसको कैसे पता लगेगा कि आपने माई पिक्चर्स में डाटा पड़ा हुआ है, जो पिक्चर लगानी वो माई पिक्चर में पड़ी हुई है या डी ड्राइव में पड़ी हुई है? तो आपको पूरे का पूरी एक उसका पाथ और लोकेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी. कैसे करोगे? यस बेटा. तो सपोज इन माय कंप्यूटर इन पिक्चर फोल्डर, ये देखो बेटा पिक्चर है यहाँ पे. आपने क्या करना है, इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना है. क्लियर? प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल बी है. कॉपी दी लोकेशन, सारी कॉपी कर लेनी है, ठीक है. कंट्रोल सी, कॉपी हो गया. इन कोडिंग पेस्ट दिस, उसके बाद स्लैश लगानी है, फिर से क्या लगानी है? स्लैश. एंड कम टू योर प्रॉपर्टी विंडो, कॉपी द नेम ऑफ द फाइल, और फाइल की टाइप कौन सी है बेटा? जेपीजी. तो पेस्ट हियर डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी, सिंपली दिस. ठीक है. सेव योर फाइल इन ब्राउजर, रिफ्रेश योर पेज. Clear? So I am showing the coding. Apply this coding. ठीक है. Type this coding in your in a notepad. Yes, quickly better do this. Online students, any doubt here? Mian? Hargunpreet?
ये देखो दिस वन, मैं एक बार परसेंट बता दूं कैसे सेट किया था हमने। आपने इन इमेज टैग राइट क्लिक इन द इमेज, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, राइट क्लिक ऑन इमेज एंड प्रॉपर्टी में क्लिक करना है, कॉपी द लोकेशन, ठीक है, देन स्लैश नेम ऑफ द फाइल डॉट जेपीजी। हो गया, इनको देखो, इनका हो गया 7 मिनट की बैठक। Steps to insert background image is open your browser in which open the folder in which images are there. Yes, offline students, right click in the image, किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, क्लियर, प्रॉपर्टीज, लोकेशन आ रही है यहाँ पे, कॉपी द लोकेशन, क्लियर, इसको कंट्रोल सी कर लो, सिलेक्ट करने के बाद कर लिया आपने, पिक्चर आई नहीं है, माय पिक्चर्स में गो टू माय पिक्चर, after copying location, go to your file and paste ये देखो बेटा, इधर इसको कॉपी कर लिया आपने, आफ्टर कॉपिंग अब आपने स्लैश लगानी है, स्लैश नेम ऑफ द फाइल, ये देखो बेटा नेम ऑफ द फाइल, कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी, okay, online students, time is over, now I am going to close the meeting, take care, bye beta.